کافی ہے, ہمیں نہ چھیڑا کرو, اور اگر ہمیں چھیڑو گے تو ہم بھی بڑا زبردست چھیڑیں گے, اور اگر ہم چھڑ گئے نا تو پھر ہماری چھیڑ کا حل آخری یہی ہوگا کہ جناب انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس اتنا پیغام کافی ہے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے لیے یہ بات قابل شرم ہے کہ اداروں کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے تو فخر ہے کہ ہمارے کارکن گراؤنڈ کی صفائیاں کریں اور گند کچرا اٹھائیں, اس لیے کہ ہم اس مشن پر نکلے ہیں کہ یہ ارض پاکستان یہ پاک مٹی ہے, اور اس کے اندر سے انشاءاللہ یہ سیاستدانوں کا تمام کچرا صاف کریں گے اور تمام گند صاف کریں گے, اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے اور اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے. وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں سٹیج پر بچیاں ناچتی ہوں, وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب عورتیں مائیں بہنیں پکارتی رہیں اور جناب وقت کا حاکم اکڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے, وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب جب کہا جائے کہ اس ملک کے سب سے بڑے چور کا انتخاب کیا جائے تو وہ ہمارے ریاست مدینہ, جھوٹے ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے کی بغل میں سے جہانگیر ترین نکلتا ہے. اور جب کہا جائے کہ جناب بہت بڑے ظالم کا اس ملک میں لسٹ آؤٹ کی جائے تو پھر جناب اس ملک کے آئی جی اور جناب سی سی پی اوز کی لسٹیں نکلتی ہیں کہ جناب یہ بھتے خور ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. لہذا ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی, حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ایک دن کہنے لگے کہ یار دعا مانگو. کسی نے دعا مانگی, یا اللہ مجھے اتنی صحت دے کہ میں تیرے رستے میں اتنی عبادت کروں, اتنے نوافل پڑھوں, اتنے حج کروں. کسی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی مال و زر دے کہ میں تیرے رستے میں اس کو صدقہ کروں. کسی نے دعا کی یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی دیر تک کافروں کے خلاف جہاد کروں. سب کہنے لگے جناب حضرت عمر سے کہ آپ بھی تو اپنی کوئی خواہش بتائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے. یہ جناب عمر کی دعا ہے, اور آپ کو پتا ہے نا جناب عمر کن کی دعا ہے؟ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. سعید بن عامر الجمحی یہ ہے ریاست مدینہ. حضرت عمر نے حمص کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کی غریبوں کی لسٹ بنا کر لاؤ. جب حضرت عمر کے پاس وہ لسٹ پیش کی گئی تو سب سے اوپر جن کا نام تھا وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی تھے. یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے ریاست مدینہ. اور حضرت عمر کے پاس 3 شکایتیں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی پہنچی. حضرت عمر نے ان کو طلب کر لیا مسجد نبوی میں. حضرت عمر ایک دن عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص اس نے اپنی پوٹلی سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے چھڑی کے ساتھ باندھا ہوا اور اپنے کندھے پہ رکھا ہوا اور مسجد نبوی میں داخل ہو رہا. حضرت عمر نے ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھا, فرمایا اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ سعید بن عامر الجمحی حمص کا گورنر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا جی بالکل یہ سعید بن عامر الجمحی ریاست مدینہ کے گورنر ہیں اور حمص کے گورنر ہیں. جب آپ پاس آئے تو آپ کی شکایتیں تھی 3. حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ کی سواری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المال کا امانت تھی, میں اسے بیت المال میں جمع کروا کے آیا ہوں. پروٹوکول کے ساتھ نہیں مدینے پہنچے. دوسری بات, حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن گھر سے باہر لیٹ نکلتے ہیں, بہت دیر گھر سے باہر نکلتے ہیں. حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی کہ جناب عمر, اے امیر المومنین, اے امیر المومنین, میرے پاس ایک سوٹ ہے جس کو میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں, لیکن ہفتے میں 1 دن جب میں اسے دھوتا ہوں تو صبح سے شام تک اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں. میرے پاس دوسرا کپڑا کوئی نہیں ہے جسے پہن کر میں گھر سے باہر نکل سکوں, اس لیے 1 دن میں باہر نکلتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کے وقت باہر نہیں نکلتے. انہوں نے کہا اے امیر المومنین, میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات رب کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے. تیسری بات, حضرت عمر نے کہا ان سے کہ آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. حضرت سعید بن عامر الجمحی فرمانے لگے مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے. اسلام لانے سے پہلے حضرت خبیب بن عدی کو مقام تنعیم پہ جو سزا دی گئی تھی نا
उस वक्त मैं इस्लाम नहीं लाया था। वो मंजर मैंने अपना सारी आंखों के सामने देखा था। जब वो मंजर मुझे याद आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसलिए तो हजरत उमर फरमाने लगे, ऐ सईद बिन आमिर अल-जुमाही, तुम्हारा गुजारा किस तरह होता है? आप फरमाने लगे, जब आप मुझे बैतुल माल में से तनख्वाह भेजते हैं ना, जब तक उस तनख्वाह को मैं गरीबों में बांट नहीं लेता, उस वक्त तक मैं अपने घर में नहीं जाता। ये है रियासत मदीना। ये जानबूझकर आंखें बंद किए फिरते हैं, ये हमें जानते हैं। हम जब हाथ बढ़ाते हैं इस्तीफा ले लेते हैं, इजाजत की तो कोई बात ही नहीं है। और इजाजतें तुम उनको देते हो जो मुल्क में जगह जगह मुल्क के खिलाफ बातें करते फिरते हैं और मुल्क के इदारों को कमजोर करने फिरते हैं और मुल्क के जनाब हसास तरीन मामलात में भौंकते फिरते हैं। इजाजतें तुम उन्हें देते हो, ये ना हो कि तुम्हें फिर पाकिस्तान से इजाजत दी जाए। हाँ, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। हम तुम्हें फिर भी कहते हैं कि हमारे अमन को कमजोरी ना समझा करो। हमारी खामोशी की भी एक जबान होती है। हाँ, हम एक हद तक तो खामोश रहते हैं, लेकिन हम जैसे हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए गैरतमंद है ना, इस तरह हम अपने एक आखिरी कारकुन की इज्जत के लिए भी गैरतमंद है। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये तमीज इसलिए बांधी है कि वो जो आप किसी वजह से या कोई बात हो या हमने कोई ऐसी बात कर दी हो कि आप समझ के बैठे हो कि जनाब इनके शुक्रिया, इनका किस बात का शुक्रिया? इनको तो शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए कि हम बगैर तनख्वाह लिए पूरे मुल्क की बात करते हैं, पूरे मुहिब्बे वतन हैं। ये तो तनख्वाहें लेकर मुल्क से गद्दारियां करते हैं, करप्शन करते हैं, इदारे बर्बाद करके रख दिए हैं। इनको शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए या हमें इनका अदा करना चाहिए? और ये जो कुछ तुम करते फिरते हो, ये हमने लिख रखा है, एक दिन जरूर हिसाब लेंगे। हाँ, और ये दिल की तख्ती के ऊपर लिख रखा है। बस तुम्हें इतना बताते हैं कि हमारे अमन को कमजोरी ना समझो। हमारा जहां दिल करेगा, जिस वक्त दिल करेगा, हम जलसा करेंगे और उस जलसे में ये नारा भी लगाएंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या। भाई, आपने पैगाम उनको देना है जिनको बहुत तकलीफ हो जाती है, तो पैगाम पूरा दें या फिर खामोश रहें। अगर पैगाम पूरा दे सकते हैं तो मेरे नारे का जवाब दें, वरना खामोशी इख्तियार करें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये मेरी इब्तिदाई बातें उनके लिए थी जो समझते हैं कि पर्चे कर कर, भाई हम सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं और मुहिब्बे वतन भी हैं तुमसे ज्यादा। तुम सिर्फ वतन से इसलिए मोहब्बत करते हो कि तुम्हारी इस वतन से अयाशियां मुंसलिक हैं। हम वतन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इस वतन में हमारे बड़ों का खून शामिल है, इस वतन को बनाने में हमारे बड़ों की कुर्बानियां शामिल हैं। और अगर वतन पे कोई बुरा वक्त आया तो तुम्हारे चार्टर तैयार खड़े हैं जिसमें तुम भाग जाओगे। और हमने अपनी आंखों में माजी करीब में देखा है कि एक शख्स के खिलाफ जब चीनी और जनाब आटे के केस खुले तो वो जाके न्यूजीलैंड बैठ गया अपने जाती त्यारे में। और हम वो हैं कि मुल्क के ऊपर कैसा भी वतन आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, हमारा जीना भी इस मुल्क के साथ है, हमारा मरना भी इस मुल्क के साथ है, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें भी इसमें हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी इसके अंदर है। और तुम वो हो जिनके बच्चे तो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके अकाउंट तो स्विस बैंकों में होते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके जनाब खानदान और फैमिलीज तो बाहर के मुल्कों में बैठी होती हैं और जनाब हुक्मरानियां और ओहदे पाकिस्तान के अंदर लिए जाते हैं। अब कौम की आंखें खुल चुकी हैं और जो आंखें खोल कर गया है ना, उस आदमी का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। और वो ऐसी इश्क के जाम पिला कर गया है कि वो इश्क का नशा तुम कहते हो ये उतर जाएगा लब्बैक वालों का, ये वो नशा है जो मरने के बाद भी नहीं उतरना। और अभी तो हमने उस मंजर में चलना है उस इश्क के साथ कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। मेरी इब्तदाई बातें उनके लिए थी जो अपने आप को इस मुल्क के मामे समझते हैं और वो इस मुल्क के
किसी भी खाते में मामे उस वक्त तक हैं जब तक हम उन्हें मानते हैं। और जिस दिन हमने कहा ना कि हम आपको नहीं मानते, अब हम सारी चीजें यहां खुद करके दिखाएंगे, तो फिर आपकी मामागिरी नहीं चलेगी। फिरौन उसी वक्त तक फिरौन होता है जब तक वो मजलूम को दबा के रखे। अगर मजलूम सामने से खड़ा होकर ये कह देना कि मैं तुझे नहीं मानता, तो फिरौन के पल्ले कख नहीं रहता। लिहाजा इंसान बनो, बस यही बात है कि इंसान बनो, और जो तुम्हारा मनसब है ना उस मनसब के मुताबिक काम करो, अपनी हदों से ना बढ़ो। ना हम अपनी हद से बढ़ने वाले हैं, ना तुम अपनी हद से बढ़ो। आओ जी चलते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की बात करने। जरूरी थी कुछ बातें करना कि लोग ये ना समझे कि खादिम हुसैन रिजवी जाता रहा। हाँ, लोग ये ना समझे भाई उसका लहजा भी बाकी है और उसकी तड़प भी बाकी है और उसकी गुफ्तार भी बाकी है। और इंशाअल्लाह ये सारे कायदीन बैठे हैं, उसके किरदार और उस अजीम कायद के किरदार की झलक भी बाकी रहेगी और सब में बाकी रहेगी। अगर ये बात खत्म होने वाली होती ना, तो फिर ये कारकुन उछल उछल के लब्बैक के नारे ना लगा रहे होते। बात तुम्हारे बस से आगे बढ़ चुकी है। अब हुजूर का दीन तख्त पर आके रहेगा। ये तुम्हारी छोटी छोटी रेशा दवानियों से ये काम रुकने वाला नहीं है। और खामखा हमसे फटे ना लाया करो, ये जबरो कार नहीं, ये इश्क व मस्ती है। और तुम जिनको रोकने वाले हो वो तुम्हारी तनख्वाहों पे पलते होंगे, वो तुम्हारे पेड़ होंगे, वो दरपर्दा सौदे करने वाले होंगे। हम जो है ना, अभी सेनेट ताजा ताजा गुजरा है, हमारे पास तुम्हारे नुमाइंदे आए थे, हर तरह के नुमाइंदे आए थे, और वो कहते थे जनाब कहीं एडजस्टमेंट कर लें। मैंने कहा मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। वो आए थे और वो आके हमें कहते कि जनाब इस पर कोई सौदेबाजी कर ले। मैंने कहा हजरत आप लेट हो गए। कहने लगे कैसे, कोई हमसे पहले आपके साथ डील कर गया? मैंने कहा नहीं, हमारा कायद हमारा सौदा बाजारे मुस्तफा में करके गया है। हम सब का एक ही तारुफ है, वो मैं बताता रहता हूं कि बाबा जी हम सबको एक तारुफ देकर गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, और आगे काम भी देकर गए हैं कि हमने नामूसे रिसालत गुलशन के अंदर किसी सूर को नहीं बढ़ने देना। ये हमारी जिम्मेदारी भी लगा कर गए हैं। हालात जैसे भी हों, मुझे अभी हमारे यहाँ नकीब खड़े हुए थे, जब मैं पहुंचा तो वो बता रहे थे कि हजरत 2 दफा प्रोग्राम करवाने की कोशिश की तो गिरफ्तारी हो गई, तो वो प्रोग्राम ना हो सका। मैंने कहा पैगाम तो बड़ा जबरदस्त पहुंच गया होगा कि 2 मरतबा रोकने के बाद तीसरी मरतबा फिर प्रोग्राम हो गया। और मैंने कहा कि आपको इजाजत नहीं देते, वो आपको इजाजत क्यों दे? वो इजाजत उनको देंगे जो मुल्क के राज बेचते फिरते हैं, जो लंदन में बैठकर पाकिस्तान की गद्दारियां करते फिरते हैं। इजाजत तो उनको मिलनी चाहिए। और जो आज भी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, सिंध में हुकूमतें तो उनको मिलनी चाहिए, इजाजतें तो उनको मिलनी चाहिए। साफ जाहिर है हमारा लीडर तो प्योर पाकिस्तानी था ना, हम प्योर पाकिस्तानी, हमें इजाजत क्यों मिले? वो समझते हैं ये पुरअमन है। मैंने कहा हम पुरअमन जरूर है, कमजोर नहीं है। हाँ, जब दिल चाहेगा इजाजत तुम्हारे अंदर से हाथ डाल के निकाल लेंगे, कोई कमजोरी बात नहीं है। ये हमारी शराफत समझो।